Very informative course today. Okay. We'll wait for a couple of minutes before other people join in. There are a lot of people who are joining in the last moment. So just 1 or 2 minutes. आई होप जो आप सभी लोगों ने अपना जो हैंड राइटिंग सैंपल जो मैंने बोला था वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। बिकॉज अगर वो नहीं लिखा है तो फिर देन दिस वुड बी ओनली मतलब अगर जो लोग हैंड राइटिंग सैंपल नहीं लिख के आए, नहीं लिखा है जिन्होंने, उनके लिए फिर ये एक कह सकते हैं एक सत्यनारायण कथा से ऊपर कुछ भी नहीं होगा सुनने के लिए, क्योंकि फिर उसमें देर इज नथिंग टू वर्क ऑन एंड दिस इज समथिंग विच and I want everyone to get achieve something out of this workshop. You should at least you know you should be able to correct at least one thing in your life after this workshop, and that should be the aim of the aim or take off जो भी आपका। और क्यों हमने हैंड राइटिंग लिया, so other people can also switch on their cameras if they wish to, because blank screen से अच्छा कि लोग दिखें तो अच्छा लगता है कि we are not talking to blank screens. So you can switch on your cameras. ये भी चेक हो जाएगा कि सब लोग so there are no boys who have sneaked in this exclusive ladies workshop for success. तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। खैर अभी so if everybody is, so I just you can raise your hand and say कि you have written, आपका handwriting sample आपके पास है। Yes. किस किस ने नहीं लिखा अभी तक? चलो ठीक है, अभी लिखा। I would trust everyone that everyone has written. And how many people have not written it so far? कोई है ऐसा, कोई बोलेगा वैसे कबूल नहीं करेंगे इस टाइम पे कि तो सबने लिख लिया है। Everybody has written it. That's great. So we will start another. So any idea why are we doing this with handwriting? अभी तक आपने और बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बट ये हैंडराइटिंग के थ्रू हम क्यों कर रहे हैं? Why handwriting? Can I answer? हाँ, please. Yeah, it said that handwriting speaks a person's mind, and Okay. through handwriting, the personality and many things can be can be found out. And if any corrections, I have heard that it changes the lives. Yes, you're absolutely Require correct. corrections, and there's a long way where we can, with many efforts which we can't be done, with few writings we can be done, because human is the only person on the world earth who is able to write, and this writing has to be the best, and it can be made to our advantages, or our to fulfill our whatever we wish or whatever we want to achieve success. Everything can be done with handwritings or writing. आपने अभी तक इतना सब मालूम, आपने अपनी हैंडराइटिंग में कुछ सुधार किया? Yeah, actually, I want to do this course because I came to know this only few days back. Okay. So I'm working on this course, which I want to do graphology. So I was just working on which has to be done. I just learned few things. That's it, not the complete one. Or Yeah, graphology in itself is a very good, very big and very good course. अगर आपको अपनी लाइफ में वाकई चेंज करना है कुछ, तो उसके लिए ग्राफोलॉजी is a very nice course and one should do it. Especially we'll talk about graphology more during the course of the time. But अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, the reason why handwriting is very important. The reason why handwriting is
handwriting, see, when we say handwriting is a brain writing, handwriting is brain writing. तो जो भी हम handwriting लिखते हैं या जो भी हम लिखते हैं, हम actually maybe we are writing with our hands, but it is not our hands, it is the brain which we are writing. So आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने फेस पे मेकअप लगा के अपने आप से शीशे में भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी हैंडराइटिंग से झूठ नहीं बोल सकते. So whatever you write is exact expression of what is going on in your mind, in your head that very moment. आप वैसा ही लिखेंगे, आप कुछ और नहीं लिख सकते. आप मतलब you can try and fool yourself कि मैं अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा उसको मैं चेंज कर लूंगा, उसको मैं पागल बना लूंगा थोड़ा सा कि, और फिर चेंज करके मैं लिख सकता हूँ, बट आप ज्यादा लंबा नहीं लिख पाएंगे. It is only 2-3 lines which you can change and write, but it is very difficult to change certain things in your handwriting, and उसको वापस से ठीक करके लिखना is a very big task. And graphology में तो खैर बहुत सारी चीजें आती हैं. The meaning of graphology basically is any graph which you make on piece of paper. मतलब अगर आपने कुछ भी लिखा एक पेपर के ऊपर, that is graphology. वो ग्राफ बन गया, चाहे वो डॉट भी है अगर एक पेपर पे, and that graph, study of that particular graph is graphology, and that says a lot of things. And there are multiple dimensions. There are more than 1,000 ways of reading any handwriting sample. So it's a vast subject. Yes, we do graphology full course also. तो वो भी है, वो भी on the lines है. We'll share the information on the group also for that course. But अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, आज की जो subject है हमारा, that is very particular, very specific about how to see success. आपको success चाहिए life में. So everybody wants success in their life. सबको चाहिए. अभी success का मतलब क्या है सबके लिए? हर एक का अपना definition होगा success का. ठीक है, अभी मैंने बोला होगा success लिखने के लिए, सबने success के ऊपर लिखने के लिए, we can have few your version or definition of success. आप लोग बता सकते हैं, कोई अगर कोई anyone wants to share. बस बोलने के बाद माइक को आप म्यूट कर दीजिए because it disturbs everyone. So अगर आप जब आप बोले तभी आप ऑन करें. हाँ जी, somebody is raising hand, please आप बताएं. Sir, for me, success is soul satisfaction. अच्छा, success is soul satisfaction. Okay, which is good. But ये कैसे quantify करेंगे इसको? Can we quantify it? It doesn't have any parameter. लेकिन अगर किसी को एक कप चाय में सुख मिल रहा है, वो उसको हो सकता है कि उस भरे हुए कप गोल्ड से ना मिले. नहीं, एक होता है philosophical discussion. हम philosophical discussion भी कर सकते हैं. ठीक है, you can have a philosophical thing. There's nothing wrong. Everybody has his own different. And see, हर आदमी अपनी एक अलग age, अलग area, अलग time of life पे है. किसी ने कुछ अचीव कर लिया है, किसी ने कुछ अचीव करना है. There are other different people, so people will have their own versions of success. So anyone else, satisfaction, soul satisfaction is one aim which you have had. Yeah, Rakhi ji, aap bataएं. Yeah, please. I feel success is very personal. Yeah. So it all depends on the person, what he wants, and it has always growth. ठीक है, success is personal. It's always growth and it's very personal. And after one stage, it has to be gone for the other, and it is always growth. It is always growth. Great. ये भी ठीक है. Growth हर चीज है, उस soul satisfaction है, उसमें भी growth चाहिए ही चाहिए. हाँ जी. Anyone else? Success. हाँ जी, बोलिए राखी जी, आप ऐसे हाथ उठा के बोलेंगे, टीवी डिबेट पे चलता है, बोल देते हैं एकदम. Actually, success is something doing or taking right action to right decision and at the right time. Okay, ये ठीक है, ये भी philosophical हुआ. कोई और success की definition for them? See, there is no right or wrong definition in this. ऐसा कुछ भी नहीं कि गलत है कि सही है, या बोले उसका डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन से अच्छा है. हेलो सर. हाँ जी. Achieving your goal, it means success for me. Okay, तो goal आपका defined है. Goal is defined, yeah. Goal defined, very good. Goal defined है तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी. Hi sir. For me, I'm working as a HR manager. Okay. I started my career as a HR.
और मैंने उसे स्टार्ट किया एज ए असिस्टेंट. राइट नाउ आई एम मैनेजर. बट माय गोल इज स्पेसिफिक कि अगले 4 साल में GM HR बनना है. सो दिस इज फॉर मी, मेरे लिए वो सक्सेस है. वेरी गुड. मैंने जैसे बताया था, हर एक का अपना अपना अलग अलग टाइम ऑफ लाइफ है, हर एक का अपना अपना एक फेज है. किस फेज से आदमी निकल रहा है उसका उसी हिसाब से उसके गोल्स और उसी हिसाब से उसके सक्सेस के डेफिनेशन होंगे. एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर देयर वर्जन ऑफ सक्सेस? Yeah, hi, good evening, sir. हाँ जी, बोलिए. So success to me is again soul satisfaction तो है ही, but उसके साथ साथ happiness, obviously name, fame और सबसे ऊपर money is success. आपने सारे ही गिन दिया, उसमें कुछ बचा नहीं है. Obvious है ना, success है sir. बड़ा word है success. बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट. मतलब इसमें so you can say it is wholesome. It is not specific for you. It is complete. सब सारे areas of life में आपको एक बैलेंस से, मतलब एक सब चीज अचीव कर ले तो आपके लिए सक्सेस है. Exactly. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. अपने आप को साबित करना. अपने आप को साबित करना, चलो ये भी है. अपने आप को किसके सामने साबित करना? अपने लिए कि किसी और के सामने? अपने लिए भी और सबके लिए भी, मतलब जो हमारी लाइफ में है. चलिए, जो चाहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए. वेरी नाइस. तो मैं मतलब आप लोगों को एक बिल्कुल ठीक सक्सेस की डेफिनेशन फिर सभी ने, हम लोगों ने बोला सक्सेस की डेफिनेशन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. एंड सक्सेस हर एक की लाइफ में अपने अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, इट इज डिफरेंट. सो व्हाट वी डू, अभी आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है? तो अभी हम कुछ हार्ड फैक्ट्स पढ़ेंगे और सक्सेस के बारे में जानेंगे क्या है, और हम अपने लाइफ में कहाँ पर हैं और क्यों उसको हम क्यों अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो ये क्या, और हमें क्या चाहिए कि हम उसे अचीव कर सकें सक्सेस में, कहाँ पे हम लैक करें. ये हमारी कोशिश होगी आज के पूरे वेबिनार में कि आप अपने जो मिसिंग लिंक है, आपका जो मिसिंग पॉइंट है, किस वजह से आप अभी तक जो अचीव करना चाहते हैं या जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सक्सेस के लिए, जैसे अभी सभी के अलग अलग डेफिनेशन भी अलग अलग है. और तो व्हाट इज सक्सेस, अगर हम इसको गूगल करेंगे, व्हाट इज सक्सेस का डेफिनेशन देंगे तो उसका आता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस. किसी भी एम या पर्पस का जो अचीव कर लिया आपने, उसको हम सक्सेस कहेंगे. वो एम या पर्पस हर एक का, एवरीबडी, इट इज फॉर एवरीवन, इट इज डिफरेंट. एंड ये किसी ने बोला था ग्रोथ होता है हमेशा, which is absolutely right. It is certainly a position which is higher than current position. So when you, whatever success, it is basically moving forward. It is basically moving a step ahead from your current position. So ये भी, this also forms a part of success. तो अभी तो मेरे ख्याल से जिसने भी लिखा है अपना, तो वो एक गोल ऊपर ही लिखा होगा, कुछ तो ऊपर लिखा होगा कि ग्रोथ वाली चीज है. They would have written, I would, but आपको हैरानी होगी कि सक्सेस रेट जो है दुनिया में किसी भी चीज के आप जोड़ेंगे तो it is only 10%. Because 90% of the people they leave before they could achieve their success. जहाँ पे पहुंचना उससे पहले ही वो हिम्मत छोड़ देते हैं. कई बार वो पहुंचने का इरादा बदल देते हैं. कई बार वो उनका they are not that determined to reach there and they leave in बीच में ही उनका जर्नी टू सक्सेस जो है वो रुक जाती है. तो एक स्टेटिस्टिक है, एक रिसर्च है जिसके हिसाब से पता लगता है कि देयर आर ओनली 10% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली अचीव व्हाट दे विश फॉर. उनके लिए जो सक्सेस रेट है, स्टैंडर्ड सक्सेस रेट किसी भी चीज का हम लेंगे वो 10%. तो वो 10% आता है. इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग जिनको हम देख के कहते हैं अरे इतने अच्छे, इतना अमीर आदमी, इतना सक्सेसफुल एक्टर है, इतना सक्सेसफुल प्लेयर है, इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. तो ये सारे के सारे आपके डेफिनेशन सक्सेस के अगर आप जोड़ेंगे तो दे आर नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. बहुत कम लोगों के हाथ में वही 80-20 वाला प्रिंसिपल है, पेरेटो प्रिंसिपल उसको हम बोलते हैं. तो वो 80-20% वाला है कि 20% विल डू 80% वर्क, 20% मतलब द एंटायर 80% वेल्थ
ऑफ द वर्ल्ड इज इन 20% हैंड। तो वो हर चीज में 80-20 प्रिंसिपल चलता है, तो वही सक्सेस में भी चलता है। तो 10% इज व्हाट द सक्सेस रेट इज। क्यों है ये? मतलब ये अगर आप सोचे कि ऐसा क्यों है कि सभी को करना है, क्योंकि अभी हमने देखा सब लोग हैं, सभी ने अपना एक अलग डेफिनेशन बताया है सक्सेस का, और वो सक्सेस के डेफिनेशन में कुछ ना कुछ उसके लिए वो रोज काम कर रहे हैं। बट जो चाहिए एग्जैक्ट वो चीज पाने के लिए, क्या हम उतना कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं। हम अभी थ्रू सम साइंटिफिक मेथड हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करें। जो आपने अभी लिखा है अपना हैंडराइटिंग सैंपल, उसको स्टडी करते हुए वी विल प्रॉब्ली ट्राई एंड गेट फ्यू आंसर्स ऑन दिस, कि क्या ये सही है कि गलत है, क्या किया आपने। सो टॉप 10 सक्सेस जो ट्रेट्स हैं हमारे, टॉप 10 सक्सेस के अचीवमेंट के जो ट्रेट्स हैं वो फ्रॉम हैंडराइटिंग, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या चीजें हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले है गोल सेटिंग। फिर है कि ये हम ढूंढेंगे कि आप सेल्फ स्टार्टर हैं कि नहीं। फिर डिटर्मिनेशन कितना आपके अंदर। फिर एक और सबसे बड़ा दुश्मन जो है सक्सेस का, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये चीज चेक करेंगे कि ये तो नहीं है आपके अंदर, ये कमी तो नहीं है जो आप कहते हो। बिकॉज सी अभी क्या है ना, अभी ये इसको डिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग आप खुद ही जज करेंगे, मुझसे शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक तरीके का आईना है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो फाइंडिंग निकलेगी वो फाइंडिंग बिल्कुल सही है, उसमें कोई इफ एंड बट है नहीं। मतलब इट इज लाइक आप जाते हैं टेस्ट कराने अपना, और उसमें शुगर निकलता है, शुगर हाई है, तो आपने कहा ये लैब बेकार है, इस लैब में शुगर हाई है, मेरा तो शुगर एकदम ठीक है। आपने दूसरी जगह जाके टेस्ट कराया तो भी शुगर हाई आएगा। तो वो जो खून की जांच जैसे आपने कराई, या आपका किसी का कोई रिपोर्ट आया बीमारी का, तो वो एकदम एक्यूरेट हम मानते हैं, उसके बेसिस पे आपका इलाज होता है। उसी तरीके से ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है आज जो आप करेंगे अपना, ये भी 100% एक्यूरेट है। इसमें भी कोई शक या कोई भी अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू करेक्ट इट। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन में बहुत लोग बोलेंगे नहीं 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 ऐसा तो नहीं करते, हम नहीं करते होंगे, कुछ चीजों में नहीं करते होंगे, बट ज्यादातर चीजों में होगा। फिर एंथुजियाज्म, कि आप कितने एंथुजियाज्म है आपके अंदर कुछ पाने का। ऑप्टिमिज्म है कि नहीं, दिस इज अगेन वेरी अपने आप को टू गेट यू योरसेल्फ गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सक्सेस, इन द जर्नी ऑफ सक्सेस। ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहीं कंफ्यूज तो नहीं है आप अपने अप्रोच में कि ये करूं कि वो करूं, ये भी हम चेक करेंगे। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, वो आपके अंदर है, तो वो भी हम आपकी हैंडराइटिंग सैंपल से ही चेक करेंगे। फिर इनिशिएटिव आप लेते हैं कि नहीं लेते। एंड लास्ट बट नॉट दैट इज सेल्फ बिलीफ है कि नहीं आपके अंदर, कि हाँ मैं ये कोई चीज जो मैंने करी है, शुरू करी है, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकती हूँ कि नहीं, ये चीज हम चेक करेंगे। सो इतनी सारी चीजें हम बहुत छोटी छोटी चीजें हमने जो लिखी हैं अपने हैंडराइटिंग में, उससे हम करेंगे। सबसे पहला है गोल सेटिंग। तो अभी बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी किसी ने बोला कि मुझे एचआर मैनेजर बनना है, अगले एचआर मैनेजर है जीएम एचआर बनना है अगले 4 साल में। परफेक्ट, आई लव दैट एग्जांपल। चूंकि वो एचआर के, तो ऐसे उन्होंने कई सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करे होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो इसलिए। और लेकिन अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कहीं पर, तो ये पढ़ा तो सभी लोगों ने होता है, किसी बुक में पढ़ा होता है। फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। पढ़ना एक चीज है, फॉलो करना एक चीज है। तो अभी तक जिसने भी लिखा, चाहे वो सोल सेटिस्फैक्शन ही गोल क्यों ना हो, बट जिसने जो भी चीज लिखी, एक तो उसमें हमें चाहिए प्रायोरिटी। आपको डिसाइड करनी प्रायोरिटी आपकी क्या है। सबसे पहले कौन सी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में, जो कि मुझे अचीव करना है। पैसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पैसा सबका होना भी चाहिए। सो अगर पैसा है तो वेरी गुड, आप पैसा वो कर सकते हैं। ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक किसी का आ रहा है, साउंड आ रहा है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट। मुझे आप लोग, अनलेस यू आर वांट टू स्पीक, आप लोग प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को आप ध्यान रखिएगा ऑफ रहे। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपने बोला मुझे एक्स पैसे चाहिए, मनी। अच्छा, आप लोगों से मनी किस किस का सक्सेस वैल्यू में आता है? ये पैसा चाहिए लाइफ में, ऐसा कितने लोग हैं जो मनी को बोलते हैं? आप यू कैन शो अ थंब एंड आई वुड
ऐसा किसी को भी नहीं चाहिए। सरप्राइजिंग। किसी ने तो बोला भी था, एक ने तो बोला था कि पैसा चाहिए चैट में। हाँ, सबको नहीं अब आ रहा है यार, सबको पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, पैसा भी चाहिए, ठीक है, पैसा भी चाहिए, मतलब ठीक है, विच इज प्रायोरिटी यू कैन सेट। आई एम नॉट कितने पैसे चाहिए, पैसे तो चाहिए, कितने? डू यू हैव अ फिगर इन योर माइंड, कि सिर्फ जनरल पैसे? कोई फिगर है किसी के दिमाग में? अबंडेंस, ये देखिए अभी हम बात करें स्पेसिफिक वाली बातें, ये जो फिलोसफी को थोड़ा सा हम अलग रखें अभी, ठीक है, साइड में रखें, उसके लिए अलग डिस्कशन कर लेंगे कभी। बट अभी हम फिलोसफिकल नहीं, मैंने क्या बोला, इस वर्कशॉप से आप लोग एक कोई चीज ऐसी लेके जाएंगे जो कि अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें और उससे आपको फायदा हो, तब तो ये मजा है इस चीज को करने का। अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मोटिवेशनल स्पीच। फुलफिल ड्रीम्स, नीड्स, ये सारी बातें अच्छी हैं। स्पेंड वेर एवर आई डू, वो ठीक है, सब कुछ है, बिल्कुल पैसा होगा तो सब कर सकते हैं, बट कितने पैसे चाहिए आपको? हैव यू डिफाइंड दैट? कोई गोल है आपका? कोई पैसों को लेके कोई है कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे आज 100 करोड़ रुपए चाहिए बैंक में? कोई भी गोल, कुछ भी ऐसा, 50,000 करोड़। देखिए हम लोग अभी कोई, अच्छा आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई मिस्टर अंबानी, अडानी, कोई इनमें से कोई क्लोज रिलेशन में जिसने 50,000 CR लिखा है? तो ऐसा कोई अगर है, जरूर, यही मैं कह रहा हूँ, विशफुल थिंकिंग, सपने नहीं देखने हमने अभी, हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ड्रीम्स। हाँ, छोटे छोटे गोल्स बना के जाएंगे तो हम ड्रीम भी अचीव कर सकते हैं, 50,000 करोड़ भी आप कमा सकते हैं, बट बशर्ते आपका 50,000 करोड़ का अभी कम से कम आपके पास, जिस आदमी के पास 10,000 करोड़ होंगे वो सोचेगा मैं 50,000 करोड़ कमा सकता हूँ। अगर उतने हैं तो फिर आप बिल्कुल सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जिस आदमी के पास 100 रुपए है वो सोचे कि अब गली में जो अभी सब्जी का जो ठेला लगा रहा है वो सोचे कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, क्या पता हो उसके पास। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर उसकी एक विशफुल थिंकिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ चलिए, कि जिसने बोला 75,000 रुपीज पर मंथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया गोल, वेरी गुड। 50,000 पर मंथ माई अर्निंग, वेरी गुड। मतलब ये फिर भी क्यों मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड? 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, जितना मर्जी आप पैसा आपको कमाना है, बिल्कुल आप पैसा कमाना वो आप। लेकिन ये जो आपने, आप मुझे अभी चैट पे जो सब लोग लिख रहे हैं, ये आप मुझे बताइए कितने लोगों ने अपनी जो अभी सक्सेस के बारे में जो मैंने बोला था राइटअप लिखने के लिए, उसमें डाला? किसी ने डाला ये फिगर? किसी ने भी ये फिगर डाला? गारंटी एक ने भी नहीं डाला। तो इसका मतलब, चलिए एक ने डाला, तो अगर आपने वो डाला है अपनी फिगर के उस अपने सक्सेस वाले उसमें, तो इसका मतलब फिर भी आप थोड़ा सा ट्रैक पे सोच रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं एटलीस्ट, बट डायरेक्शन जहां चल रहे हैं वहां ठीक है। अदरवाइज ये सब विशफुल थिंकिंग में आती है। हाँ बिल्कुल, ये मैं यू हैव मेंशन्ड, यस मैं बोल रहा हूँ, एक बिल्कुल बड़ा अच्छा एग्जांपल था अभी, जो बिल्कुल मैं जो अभी जिसने लिया। एंड बट आई वुड से कि फिगर्स जो है ना, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे हम लोग सोल सेटिस्फैक्शन और इन सब चीजों की बात कर रहे थे, तो आई एम श्योर आप सभी लोग कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस का कुछ ना कुछ अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, कुछ ना कुछ तो फॉलो कर ही रहे हैं सबके सब। बट वो फॉलो तो कर रहे हैं सब लोग, सुन भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि काफी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सब, इन सब बातों पे हम लोग काम कर रहे होंगे। बट ये सब सारी बातें जो भी हैं, ये दीज ऑल आर, ये बातें ही रह जाएंगी, और ये सिर्फ आप सुनते रहेंगे प्रवचन की तरह, फॉलो नहीं, मतलब जब तक इस पे आप काम नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे उस चीज को, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और वो लाइफ में उतारने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप, भाई मुझे, आप जब एक कैब बुक करते हैं उबर में और ओला में, तो आपको एक डेस्टिनेशन डालनी पड़ती है, बिना उसके तो कैब भी बुक नहीं होती, एक डेस्टिनेशन तो डालते हैं ना। तो डेस्टिनेशन इज योर गोल, कि मुझे यहाँ जाना है, इस जगह से यहाँ जाना है। तो अभी कम से कम वो डेस्टिनेशन तो आपको अपने लिए तो डालनी पड़ेगी ना। बैंक में कितने पैसे चाहिए आपको, हर महीने के कितने चाहिए, ओवरऑल कितने चाहिए, वॉट एवर। तो ये फर्स्ट स्टेप है गोल सेटिंग का, ये गोल सेटिंग पहला स्टेप है। और गोल सेटिंग जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक है लॉन्ग टर्म गोल।
लॉन्ग टर्म गोल जो है इसको हम बोलते हैं विजन। आपकी लाइफ का विजन क्या है, और ये विजन जो है, ये विजन आपका सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को मिलाकर ही पूरा होगा। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स का एक डेफिनेशन है जो कि बहुत सभी जगह यूज होता है। जो आपने जो प्रोफेशनल्स है उन्होंने ट्रेनिंग्स में भी सुना होगा कि गोल्स जो है स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोल सेटिस्फैक्शन भी किसी का गोल है सक्सेस के लिए। ये मैं बार बार एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये फिलोसफिकल साइड का पूरा कर लेगा। सो एनीवन हु नीड्स हैप्पीनेस, उसके लिए भी सेम चीज है। हैप्पीनेस को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज है। हो सकता है कोई मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड करना हो सकता है कोई कोर्स करना, उससे आपको वो चीज मिले। हो सकता है कोई आपको ऐसा हो कि मैं कोई एनजीओ में सर्व करूंगा जाके, तो वहां पे कुछ आपको ऐसा मिलता हो। तो वो एक उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि क्या करने से क्या मिलेगा। तो वो अगर आपने कर लिया तो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो एग्जैक्टली हर आदमी यही बोलता है बट करता कोई नहीं है। ये सबको मालूम है, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, आपने सुना होगा, 50 जगह सुना होगा, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट। फिर मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिफाई तो करना ही पड़ेगा, बिना क्वांटिफाई करे वो गोल गोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। अच्छा लगने का कोई पैरामीटर है अगर आपका भी, आप कैसे कहते हैं कोई चीज अच्छी लगी आपको। सो वो क्वांटिफाई करना पड़ेगा, मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा अचीवेबल या एक्शनेबल होना चाहिए। जैसे अभी किसी ने 50,000 करोड़ की फिगर डाली है, वो 50,000 करोड़ पता नहीं मेरे लिए तो आज की डेट में नहीं है, ना अचीवेबल है भी करंट उसमें, ना वो एक्शनेबल है, बट किसी के लिए है। बहुत अच्छी बात है, करें वो, उसके लिए बिल्कुल दे शुड गो फॉर इट, बट इट हैज टू बी अचीवेबल एंड एक्शनेबल, जो खुद को बिलीव हो जिसपे। कल को मैं बोलूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है इस देश का, और मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी नहीं करी अभी तक, तो वो तो मैं वही होगा ना फिर तो, ये शेख चिल्ली वाली, ये आदमी तो शेख चिल्ली के सपने देख रहा है। ये ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, ना आज तक कोई पार्षद का भी इलेक्शन, सोसाइटी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा इसने। जो अब जहाँ रहता है वहां पे जहाँ 100 फ्लैट्स है, उसका भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा इस इंसान ने, और ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर देन इट हैज नो लॉजिक। सो ये चीज होनी जरूरी है, अचीवेबल और एक्शनेबल होना चाहिए जो भी आप सोचें। फिर रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उससे रेलेवेंट है। जो भी रियलिस्टिक है, आपको खुद लगता है कि नहीं लगता, आप शीशे में खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। अगर ऐसा है गोल आपका जो भी बनाया आपने, तो देन यस इट इज अचीवेबल, इट इज रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। और चौथा चीज है टाइम बाउंड होना चाहिए। एक टाइम लिमिट आपको डालनी पड़ेगी कि ये टाइम जो है, ये 4 घंटे में, ये 4 साल में पूरा होगा, 4 घंटे में पूरा होगा, 10 दिन में पूरा होगा। ये एक टाइम, उसका एक मेजरेबल टाइम कब तक पूरा होगा गोल का, वो बनाइए। तो अभी आपने जो भी सक्सेस की डेफिनेशन करी है उसमें ये चेंजेस आप जरूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं रियलिटी चेक पे, कि रियलिटी चेक मतलब अभी आपका हैंड राइटिंग सैंपल आप लोगों ने जो दिया वो चीज हम देखते हैं। जो टी के ऊपर क्रॉस बार लगता है, टी आपने जितने भी टी बनाए हैं अपनी हैंड राइटिंग सैंपल में, वो चेक करिए और देखिए टी कहाँ पर है। वो क्रॉस बार जो लगाया है, ये जो क्रॉस बार है ऊपर टी का, ये कहाँ पर है। अगर ये टी का क्रॉस बार 99% लोगों का, ये जो लास्ट वाला यहाँ होगा, ये मिडिल जोन में ही होगा, ये जो लेटर जो साथ के लेटर है उनसे उतना ही ऊंचा होगा। अगर आपका भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ये टी का क्रॉस बार का मतलब होता है आप कितने बड़े गोल्स अपने लिए सेट करते हैं अपनी लाइफ में, आपके कैसे गोल्स है। तो अभी आप लोगों का कहाँ पर है सबका टी क्रॉस बार, जो अपने हैंड राइटिंग सैंपल में लगाया आपने, वो किस तरफ है। ये 4 बाइफरकेशंस हैं, ये कहाँ पर है, ये इसी तरफ है। जो सबसे नीचे वाले जितने भी हैं वो अपना दे कैन से यस ऑन लास्ट वाला। मैंने तो हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा आपने? जी सर। तो कोई नहीं, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि टी क्रॉस बार ये तो इंग्लिश का ही अभी हमने कर रहे हैं, इसमें हिंदी का हम नहीं कर पाएंगे अभी। फोर्थ लेवल मतलब हाँ सभी का फोर्थ है, कोई ऐसा। सर मेरा तो मिक्स है, कोई तो टी के ऊपर है, मैक्सिमम कोई कितने? बीच में कोई है। बात नहीं, आप होंगे, मिक्स होंगे, कोई नथिंग टू वरी। अगर आपने 10 बार टी लिखा है तो 10 बार टी में
आपके कौन सा वाला मैक्सिमम है वो आप चेक कर लीजिए, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ 99% वाले को यहीं पर होते हैं गोल। अब जब मैं आपको बोलूंगा इसका करेक्शन करने के लिए कि टी का क्रॉस बार ऊपर डालना है, तब आपको कितनी मेहनत पड़ेगी ये आपको भी यकीन नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियसली है। हम लोग डे टू डे की उलझनों में, डे टू डे की काम में, रोज के गोल्स में, कि हम उतने ही गोल्स में रह जाते हैं कि आज का दिन क्या करना है हमने, आज खाना क्या बनाना है, आज शाम को क्या करना है, आज मेरा ये क्लास है, आज मेरे को वहां जाना है, आज मेरा ये जो मतलब इट इज आवर गोल्स आर लिमिटेड टू दिस टुडे, मे मैक्सिमम अ वीक और अ मंथ। इससे ऊपर का गोल नहीं हमारा, और ना इससे ऊपर का है हम अपना गोल सेट भी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें गोल जो सेट करना है। जो कभी कभी कुछ आप देखेंगे जिसका टी का क्रॉस बार ऊपर है, एकदम लाइन से ऊपर, विच इज वेरी हाई गोल्स अगर है, मतलब एम्बिशियस लोग हैं, तो वो टी का क्रॉस बार जो मिडिल जोन के लेटर्स होते हैं उनसे ऊपर लाइन बनाते हैं। सो अगर आप उससे ऊपर लाइन बना रहे हैं, जैसे थर्ड वाला जो है, दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू शुड हैव दैट टी का क्रॉस बार विच इज अबव द मिडिल जोन लेटर। जैसे यहाँ पे 10 में ई से ऊपर इसका लाइन है, तो ऐसा वाला लाइन आपका अगर आप बनाएंगे, दैट इज द बेस्ट वे। और ये अगर आपको लगेगा इसको बनाने से क्या मेरे गोल सेटिंग चेंज हो जाएगी या मैं ज्यादा सोचने लगूंगा, अगर इस पे शक है ना आपको, तो आपको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा करना क्या है इसको ठीक करने के लिए। तो वो आप करिएगा, आप पूरे कम से कम 3 महीने करिएगा। 3 महीने कर, मिनिमम 3 महीने लगेगा उसको रिवायर करने का। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना या रीप्रोग्राम करना। तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि बचपन से जो आदत बनी हुई है अब तक, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। उसका मेथड है चेंज करने का, एंड हैंडराइटिंग इज वन सच मेथड टू चेंज। तो वो आप जैसे आप लिखेंगे और टी का क्रॉस बार ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपकी गोल सेटिंग, आप जो सोच, आपकी सोच का जो लेवल है, you will immediately, मतलब after say a month, you will realize that you started thinking big. वो आप खुद ही रियलाइज करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे टी का क्रॉस बार ऊपर जाएगा, आपकी सोच, आपका जो गोल है, जो गोल सेटिंग ऊपर हो जाएगी। आप कहेंगे अच्छा मुझे ऊपर का, अब मुझे अभी तक तो 100 रुपए चाहिए थे, अब मुझे 500 चाहिए। वो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। हर चीज में आपकी गोल सेटिंग जो है वो ऊपर हो जाएगी। सो टी क्रॉस बार इज यस वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसमें है, ये ड्रीमर टाइप का है, ये एम्बिशियस है, ये प्रैक्टिकल गोल्स हैं, और ये डे टू डे गोल्स हैं जो बिल्कुल बराबर बराबर के रहते हैं। ये आपका एम और रियलिटी क्या एम कर रहे हैं लाइफ में, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए गोल सेटिंग क्या हो रही है आपकी, कैसी हो रही है गोल सेटिंग, और कितनी लॉजिकल है, कितनी प्रैक्टिकल है, इसको देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से चेक करें। फिर दूसरी चीज, क्या आप सेल्फ स्टार्टर हैं? मतलब सेल्फ स्टार्टर का मतलब है कि आप खुद स्टार्ट करेंगे कोई चीज। जैसे बेसिकली आपको किक चाहिए कुछ चीज स्टार्ट करने के लिए, ये आप खुद ही अपने आप से कर सकते हैं। और ये हम सभी को बड़ा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कह सकते हैं आप ये, कि हम सबको लगता है हम सब सेल्फ स्टार्टर हैं। बिल्कुल होंगे। आपके लिए जो घर की काम है या जो मजबूरियां हैं हम लोगों की लाइफ में, उसके लिए हम सेल्फ स्टार्टर है, क्योंकि कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है। इसलिए हम वो वाले काम तो सारे सेल्फ स्टार्टर बन के करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें अपना जो गोल हमने सेट किया, जो चीज हमने किया, उसके लिए क्या हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, खुद से स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज, या कोई पुश करता है हमें लाइफ में कुछ करने के लिए, तभी करते हैं। ये चीज भी हैंडराइटिंग से पता लगेगी आप, और ये चीज भी हमें टी के क्रॉस बार से ही पता लगेगी। कितना मोटा स्टेम है। टी में 2 लाइनें हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम स्टेम बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्रॉस बार बोलते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज अगेन, इसकी थिकनेस देखनी है आपने। ये थिकनेस मोटी है और बराबर है दोनों की, ये पतला है ऊपर, क्रॉस बार जो है वो पतला है। अगर क्रॉस बार पतला है, ये भी इसमें मतलब 50-60% लोग मिल जाते हैं जिनके दोनों ही बराबर होंगे। लेकिन अगर किसी का ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार है उसकी थिकनेस कम है स्टेम से, तो उस इंसान को वो सेल्फ स्टार्टर नहीं है। ही नीड्स अ पुश इन हिज लाइफ। उसको पुश करना पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए।
सो आपका किस तरफ आता है, अगर ये बराबर है तो एवरेज है, हेवियर है तो अबव एवरेज है, लाइटर है तो बिलो एवरेज है। तो सेल्फ स्टार्टर का जो आप कह सकते हैं, यस आई टेक इनिशिएटिव, में अपना इनिशिएटिव भी हम देखेंगे कैसे लेते हैं, बट मैं आई एम सेल्फ स्टार्टर, मुझे जरूरत नहीं किसी को बताने की कि मैं क्या, मतलब मुझे क्या करना है नहीं करना। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस लाइटर, किस किस का वही बताए बस। डू यू हैव, इज देयर एनीवन जिसका वो लाइटर है, पतला है ऊपर का क्रॉस बार, और जो स्टेम है वो मोटा है, ऐसा है कोई? Do we have anyone who has this kind of a situation? सर मेरा मोटा है। मोटा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर थिकनेस ज्यादा है तो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज थिकनेस शोज दैट यू आर अ सेल्फ स्टार्टर। वैसे मैं हमेशा खुद ही करती हूँ, लेकिन वो बीच में ही छूट जाता है जो भी करती हूँ स्टार्ट। उसके लिए भी आएंगे अभी, सेल्फ स्टार्ट तो कर लेते हैं, वो एंड पे नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा वो भी हम चेक करेंगे। तो फॉर पीपल हु आर सेल्फ स्टार्टर इट इज गुड, इट शुड बी, और थोड़ा सा इसमें हमें क्रिटिकल रहना पड़ेगा। अभी मैं ये, इसके बाद हम आते हैं डिटर्मिनेशन में। तो ये डिटर्मिनेशन कितना है, आपको कुछ भी चीज अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन कितना है। तो ये आपने एक पिक्चर का सीन है, मैंने पता नहीं इसमें आवाज आपको एक बार बताइएगा मेरे को, आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं आ रही? पता नहीं मेरे को ही आ रही है इसकी आवाज इसमें। अच्छा, ये क्या है, ये एक पिक्चर था, ये मांझी माउंटेन मैन करके एक पिक्चर आई थी, ठीक है। इसमें डिटर्मिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिटर्मिनेशन का मतलब आप सब जानते होंगे, डिटर्मिनेशन क्या है, आप कितने डिटरमाइंड है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो डिटर्मिनेशन, आप कितना अंदर आपके हौसला है कि आप इसको पूरा करेंगे। तो ये मांझी द माउंटेन मैन का डिटर्मिनेशन से ज्यादा मेरे को कोई और ऐसा कोई दिखा नहीं, लाइव लिविंग एग्जाम्पल जो डिटर्मिनेशन की बात बताए। एक आदमी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, एंड वो भी सिंपल एक छेनी हथौड़े के साथ पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। वो इतना डिटरमाइंड था कि 20 साल लगे उसको तोड़ने में, बट वो लगा रहा। सो दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन इज, जो कि सबसे ऊपर है। ये डिटर्मिनेशन अगर आपको है तो ये इसका बेसिकली वही है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आए आपको लाइफ में और आप उसको ओवरकम करके आप आगे निकलेंगे, अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन इज। सो ये कैसे आएगा? जो लोग कह रहे हैं कि मैं अभी आधा काम करके छोड़ देते हैं, उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं, आप अपने लूप्स, जो जी के नीचे का लूप है वो चेक करिए। जी के नीचे का लूप चेक करिए, कौन से लोग हैं जो पूरा लूप बना रहे हैं और कौन से लोग जो हैं वो आधा लूप बना रहे हैं, छोटा लूप बना रहे हैं। और जैसे कि अगर ये जिस जी का लूप जो है छोटा है नीचे का, तो इनका डिटर्मिनेशन सिर्फ 2 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए है, उससे ऊपर नहीं चलेगा। जिनका डिटर्मिनेशन थोड़ा सा बड़ा है वो एवरेज है। जिनके बड़े बड़े लोअर जोन के लूप्स हैं, ये है इंड्योरिंग डिटर्मिनेशन, ये बताएगा कि हाँ मैं पूरा काम करूंगा, एंड तक काम खत्म करूंगा। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके भी लोअर जोन के लूप्स कम है, छूट रहे हैं, और ऐसा भी होगा, लोअर जोन के लूप्स आप कौन से लेटर्स में चेक करेंगे? जी में चेक करेंगे, वाई में चेक करेंगे, ठीक है। एफ का भी चेक कर सकते हैं, जो एफ में अगर लोअर जोन का लूप बना रहे हैं आप। जे में चेक कर सकते हैं, अगर जे अगर आपका नीचे जा रहा है तो जे, जी, वाई, ये वाले जो एफ वाला जो लेटर्स है, ये सारे लोअर जोन के लेटर्स हैं, जी एंड वाई है। तो ये लूप्स अगर आपके पूरे बन रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े बन रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट शोज डिटर्मिनेशन। और अगर नहीं बन रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने मिक्स बनाया हो, कहीं पर पूरा बन रहा है, किसी में जी में पूरा बन रहा है, वाई में छूट गया, या वाई का ऐसा है, ये पतला है, ये मोटा है, अलग अलग तरीके से दिखेंगे आपको। सो वो आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि कितने, कैसे हम, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आधे छूटे हुए लूप्स बन रहे हैं या पूरे लूप्स बन रहे हैं, और बड़े हैं लूप्स। अगर बड़े हैं लूप्स, पूरे बन रहे हैं, देन दैट इज वेरी गुड, दैट शोज दैट यू आर डिटरमाइंड टू you are highly determined to take whatever goal you want to achieve in life। तो आप अपना determination level उससे आप चेक कर सकते हैं। सर हाँ जी।
सर अगर लूप्स अच्छे बने हो लेकिन क्लोज नहीं हो, ओपन हो तो? नहीं, वो नहीं, क्लोज चाहिए। ओपन में फिर यहाँ आ गई है नहीं, ये तो नीचे ही है, अगर ऊपर तक आकर ऊपर भी, आधे में। ऊपर, हाँ ऊपर का मतलब पता क्या है, ये जितना कम है ना उतना जल्दी आपने, ऊपर का मतलब तो आप 90% मेहनत करते हो फिर लास्ट में आके छोड़ देते हो। ओके। ठीक है, आपने मतलब 80-70-80% तक तो आपने मेहनत करी, फिर लास्ट में आता था छोड़ा, यार ये नहीं होगा छोड़ दो इसको। तो आप उनसे बेटर हो जो कि आधे रास्ते में ही गायब हो जाते हैं, बट कोई बेटर मतलब उससे बेटर होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम फिर भी पूरा नहीं हो रहा। ये जी के लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लूप बहुत सारी बातें और भी करते हैं कि थिकनेस भी, हम जब ग्राफोलॉजी पढ़ते हैं तो इस लूप की थिकनेस कितनी है वो भी मेजर करते हैं, हाइट कितनी है वो भी मेजर करते हैं, कितना इसका कंपैरिजन भी करते हैं ऊपर जोन के लेटर्स के साथ, एंड देन वी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स व्हिच आर देयर फॉर दिस। बट अभी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच वी आर टॉकिंग, उसके लिए हम सिर्फ ये देख सकते हैं हमारे लूप्स जो है ये कितने बड़े, और ये पूरे होने चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए इस लाइन को ना, ऊपर से साइड से क्रॉस करना चाहिए इसे। So that is very important. So people who are not making these kinds of loop, आप प्लीज चेक करें। आप अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में भी चेक कर सकते हैं, अगर उनके लूप नहीं वो कर रहे हैं तो उनके अंदर विल पावर की बहुत कमी होगी। जैसे ये शॉर्ट लिव डिटर्मिनेशन जो है ना, ये विल पावर को भी बताता है एक तरीके से। डिटर्मिनेशन इज योर विल पावर, कि आप कितने, आपकी विल पावर कितनी, कितना आप स्टैंड कर पाएंगे। जो आपने सोचा है कि मेरे को, अब हो सकता है किसी का सक्सेस के लिए अभी शॉर्ट टर्म गोल हो कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करना, अगर वो जी लूप पूरे नहीं बना रहा तो वेट रिडक्शन में समझ लो कि उसने डाइट प्लान फॉलो किया या जिम का मेंबरशिप लिया, वो 2 दिन जाएगा 3 दिन जाएगा, वो ये वाला अगर ऐसे लूप्स बन रहे होंगे। तो जहां पूरे पूरे लूप्स बन रहे होंगे, समझो हाँ इसने अब लिया है अपना जिम का मेंबरशिप या डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया, सो दे दीज पीपल विल फॉलो इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाट जी लूप वुड सजेस्ट कि आप क्या कर रहे हैं। ये आपका डिटर्मिनेशन दिखाता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं अपने काम के लिए। बड़े बड़े लूप्स बनाइए अपनी हैंडराइटिंग में, इट इज इजी। जितने आप बड़े लूप्स बनाएंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी आपके डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होने में। तो जी, वाई और जे लेटर्स में आप अपने लूप चेक कर सकते हैं। सो अभी तक कुछ जो हम लोगों ने बात करी, इट इज इट मेकिंग सेंस, मैच कर रहा है आपके उसमें अपने आप ही, अपने बी सेल्फ क्रिटिकल, बी सेल्फ एनालिटिकल थोड़े से, ठीक है हाँ ये सही है कि नहीं है, तो ये मैच करेगी चीज। वैसे इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मैच 100% करेगा। अभी मैंने एक और गाना इसमें लगाया था, वो गाना आपके उसमें आएगा नहीं, बट मैं फिर भी बजाने इसको, ये गाना मैं वैसे कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाने की, कि सिर्फ कंप्यूटर का नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल गई है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। ये जो गाना मैंने आपको सुनाया, दिस सॉन्ग वाज ये जो गाना आप लोगों ने गाना सुनाई दिया था आप लोगों को, यस सर। चलिए आइए, सब गाना अच्छा लगा सबको? हाँ ऑडिबल गाना, गाना अच्छा था, गाना सबका अच्छा ही गाना है। तो ये गाना आप देखो, हमारा ना बॉलीवुड में हर तरीके का, अगर आप बॉलीवुड पिक्चरें पुरानी देखते हैं ना अगर, और बॉलीवुड का शौक है आपको, तो आपको किसी गुरु महात्मा किसी किसी की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड में बहुत ज्ञान भरा है, हर गाने में बहुत ज्ञान है। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की बात है, जो मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता प्रोक्रास्टिनेशन का, कि ये दिल देने वाली बात है और उसमें भी कह रहे हैं कि आज नहीं कल देंगे। तो मतलब दिस इज लाइक टालने वाला काम है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो ऐसे जो टालने वाली चीज है ना, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं कि हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे,
तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजों पे बहुत गाने भी मिल सकते हैं हर टॉपिक पे आपको, और हर टॉपिक पे आपको इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। सो ये कैसे पता लगेगा कौन लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? जिनका टी का क्रॉस बार क्रॉस नहीं करता वो आधे लेफ्ट में रह जाता है। कोई है ऐसा जिसका टी का क्रॉस बार ऐसा बनता है? कोई भी है ऐसा जिसका टी का क्रॉस बार ऐसा बन रहा है? अब चेक करिए, टी इस तरीके से बन रहा है, लेफ्ट में ही है, अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं है तो ज्यादा राइट में है तो नहीं, ज्यादा राइट में अलग, मतलब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करें तो हम वो प्रोक्रास्टिनेशन में अटकेंगे फिर, नहीं तो ज्यादा राइट इसका ये, अभी तो हमने सिर्फ एक हाइट का एक बात किया, उसका अलग अलग मतलब है हाइट में भी, तो अभी ज्यादा राइट छोड़ दीजिए, लेफ्ट में तो नहीं है। अब वो देखिए, राइट को अभी मत आप करिए, कंफ्यूज मत करिए। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे, आप लोग जब दिल देना है तब उसी दिन देंगे, कल नहीं देंगे, मतलब कोई काम करना है आपने तो आप उसी टाइम करेंगे। You will not postpone your what you are willing to do, which is a very good sign, क्योंकि अगर आप जो काम आज कर रहे हैं उसको पूरा खत्म करें आज, that's the best thing to do। और अगर आप ऐसा करते हैं ग्रेट। तो टी क्रॉस बार यहाँ नहीं होना चाहिए। आप जरूर चेक करें अपने बच्चों की कॉपी के अंदर, जहां पर भी आप देखते हैं जिसका भी टी ऐसा दिखता है, आपको 2 लाइनें लिखवा लीजिएगा, उसमें टी का अगर लेटर है इस तरीके से दिख रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सज्जन प्रोक्रास्टिनेट करेंगे चीजों को कि नहीं करेंगे। तो ये अब हम आते हैं एंथुजियाज्म में, कि आपके अंदर कितना एंथुजियाज्म है। एंथुजियाज्म किस लिए चाहिए? कि विंस्टन चर्चिल का बड़ा अच्छा लाइन है ये सक्सेस के ऊपर, कि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। मतलब एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर पे जाएंगे, सक्सेस मिलेगा, बट ठीक है अभी नहीं मिला, बट वो एंथुजियाज्म की जरूरत है, एंथुजियाज्म बहुत जरूरी है होना। और आपने देखा होगा बहुत टाइम पे आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आपको जो करना है नहीं मन कर रहा, क्या है डाउन फील कर रहे हैं आप, तो वो किससे दिखेगा आपका? ये लोअर केस टी का जो क्रॉस बार का जो हाइट है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्लांट है या नीचे की तरफ जा रहा है, ये चीज आपने चेक करनी है। टी का जो क्रॉस बार ऊपर गया कि नीचे की तरफ गया, ये हम 2 चीजें आप चेक करने। अगर ये टी का क्रॉस बार ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट टी का क्रॉस बार, टी का क्रॉस बार जो है हैंड राइटिंग भी ऊपर की तरफ जाती है अगर आपकी, तो एंथुजियाज्म आपके अंदर पूरा है, गुड, दैट्स अ गुड साइन। और अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, जैसे अगर वो थोड़ा सा स्लांट कर रहा है, नीचे की तरफ स्लांट कर रहा है, तो ये एंथुजियाज्म की भी कमी है, और ये आपके इमोशनल, मतलब ये आपको कुछ इमोशनल इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से आपका आप लो फील कर रहे हैं, एंथुजियाज्म आपका डाउन है। तो टी का जो क्रॉस बार है इसको ऊपर की तरफ बनाए, लोअर जोन से ऊपर की साइड बनाए, ऐसा थोड़ा ऊपर करके, तो एंथुजियाज्म रहेगा। और ये अपने आप ऑटोमेटिक रेमेडी है, और ये बड़ी जल्दी आप, और ये आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कई बार कि आपके करंट मूड पे बहुत डिपेंड करेगा कि कैसा है। फ्लैट है तो उसको ऊपर आप कर सकते हैं, अगर किसी का फ्लैट है तो उसको आप ऊपर बना सकते हैं, तो ये कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ऊपर बनाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट इजी। अगर आपको लगता ना अरे टी का क्रॉस बार बनाना है, ऊपर बना दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप 2 लाइनें लिखेंगे ऊपर बना के, तीसरी लाइन में अपने आप वापस नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि आप कभी भी सोचेंगे नहीं लिखते समय, वो ऑटोमेटिक होगा, उसको कॉन्शियस एफर्ट करके करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप 1 पेज 2 पेज लिखते हैं ऐसे, तो आपको बहुत मेहनत, मतलब अच्छी मेहनत का काम है। तो ये टी का क्रॉस बार एंथुजियाज्म, आप ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं? अब ऑप्टिमिज्म जो है ना, हम लोग सब लोग अपने बी पॉजिटिव, तो सभी कहते हैं कि बी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव रहो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, इजियर सेड देन डन, आसान काम नहीं है पॉजिटिव रहना। नेगेटिव, मतलब कुछ बुरा हुआ आपके साथ तो आपका सोच नेगेटिव होगी ही होगी, बट फिर भी पीपल से कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक जो है ना, ऑप्टिमिज्म इज नॉट जस्ट अ माइंडसेट, इट इज अ बिहेवियर। ये बिहेवियर में जब तक नहीं जाएगा ऑप्टिमिज्म नहीं आएगा। और बिहेवियर में जाने के लिए और चेक करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी जो स्लांट है, टी बार की जो स्लांट है, ये किस तरफ जा रही है। जैसे अभी हमने पीछे करा था कि ये ऑप्टिमिज्म में आएगा मामला, तो ये टी की क्रॉस बार जो है ऑप्टिमिज्म जैसे करा। तो दूसरी एक और इसमें चीज है, टी का क्रॉस बार ही नहीं, जो आपकी जो स्लांट है
स्लांट मतलब जो जैसे हमने लिखा हुआ है, आप ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे और अगर वो राइटिंग आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पूरा जो राइटिंग सैंपल है वो उसी राइट ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट शोज योर ऑप्टिमिज्म। थोड़ा सा ऊपर, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा एंड ऑफ द पेपर पे थोड़ा ऊपर हो गया, तो दैट शोज योर ऑप्टिमिज्म, दैट शोज योर एंथुसियाज्म। ये काफी मिलते जुलती चीजें हैं, एंथुसियाज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों एक ही तरीके से हम देख भी सकते हैं। हैंडराइटिंग, बट ये हैंडराइटिंग का जो आपका बेसिक स्लांट है उस पर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट नीचे जाता हुआ सिग्नेचर, नीचे जाता हुआ कोई भी आपका स्लांट ऑफ हैंडराइटिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी नेगेटिव। ये बताता है आपके आप बहुत पेसिमिस्टिक हैं, तो ये पेसिमिज्म नहीं बताना चाहिए इसको ये ऑप्टिमिज्म के लिए आपको थोड़ा सा अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा ऊपर की साइड शिफ्ट करना चाहिए, थोड़ा ऊपर रहे। जिसका नेगेटिव फील कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर कोशिश करें लिखने की, तो भी वो आपका मूड चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। अब ये कंफ्यूजन, अब ये खिचड़ी मूवी आप लोगों ने देखी तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन है इसमें, ये कंफ्यूज करने का कि आप कितने कंफ्यूज्ड हैं। अभी जो हैंडराइटिंग सैंपल हम लोग देखेंगे जिस तरीके के, ये कंफ्यूजन जो है ये आप अपने अपने हैंडराइटिंग सैंपल में जरूर चेक करिएगा कि आप कितने कंफ्यूज्ड हैं। कि आप कंफ्यूज, आप बोलेंगे नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी क्लैरिटी है, लेकिन आपका हैंडराइटिंग सैंपल जो है ना वो पूरा क्लियरली बता देगा। कैसे? इस तरीके से दो लाइनें जो है, ये दो लाइनें जो लिखी है आपस में दोनों मिल रही है क्या? उनके लोअर जोन, नीचे का लोअर जोन, एक लाइन का लोअर जोन का लेटर और एक लाइन का अपर जोन का लेटर आपस में टच कर रहे हैं क्या? किसी का ऐसा है हैंडराइटिंग जिसमें दो लाइनें आपस में लेटर्स मिल रहे हो? Does anyone have that kind of a handwriting जिसमें हैंडराइटिंग में दो लाइनें आपस में मिल रही हो, लेटर्स मर्ज कर रहे हो आपस में एक दूसरे में, दो लाइन के? सर एंड्स टच कर रहे हैं लेकिन मर्जिंग नहीं है। टच कर रहे हैं ना, जो जिसके भी टच कर रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, ठीक है, वो कंफ्यूज्ड है किसी बात को लेके, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, चाहे वो कभी कभी करें चाहे वो रेगुलरली करें। सो जस्ट वॉच योर हैंडराइटिंग, दोनों को दूर दूर लिखना शुरू कर दो। वेरी इजी सोल्यूशन, दो लाइनों को अलग अलग पूरा पढ़ना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, ऐसा लिखना शुरू कर दो। थोड़ा ज्यादा गैप भी दे दोगे तो भी चलेगा, बट टच नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे आपके दिमाग का जो कंफ्यूजन है कितनी जल्दी ऐसे उड़ गया। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए ऐसे दूर दूर लिख के, दोनों को मिक्स मत होने दीजिए, दोनों को ऐड मत होने चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए बीच में दो लाइनों के, मतलब इतना स्पेस दीजिए कि दोनों लाइनों का टच ना हो। ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा आप, और आप लिखेंगे, आप करेंगे, आपका कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेके हो, एंड जनरली कंफ्यूजन हम देखते हैं आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे होता है, विच जनरली हैम्पर्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आप दूर दूर लिखना शुरू करते हैं। बहुत इजी सोल्यूशन है बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली ड्रिवन होते हैं, लिखते हैं जब, और जब आप कॉन्शियसली लिखना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा मेहनत का काम है, इसमें तो बहुत सोचना पड़ा, इसमें तो बहुत एफर्ट लग रहा है, क्योंकि हमारा माइंड नहीं कहेगा कि ऐसे लिखना है, वो कहेगा नहीं नहीं आपको जैसा आता है वैसे लिखो, बट आप कोशिश करेंगे नहीं मुझे तो दूसरा लिखना है। दैट्स हाउ योर डिफरेंट न्यूरल पाथवे विल बी क्रिएटेड, एंड आपका सोच ही बदल जाएगी थोड़े दिनों में कंप्लीटली। सो कंफ्यूजन दिमाग में नहीं चाहिए इस तरीके के, जैसे जो ऊपर नीचे मिक्स हो रहे हैं, लेटेस्ट टच हो रहे हैं, इस तरीके की हैंडराइटिंग किसी की भी हो, तो बच्चों की स्पेशली आप चेक करिएगा कि उनकी हैंडराइटिंग ऐसी तो नहीं, क्योंकि अगर उनकी हैंडराइटिंग ऐसी है देन यस देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर किड्स हेड। क्लैरिटी ऑफ थॉट तो हमें चाहिए ही चाहिए, कि आपको पता होगा क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब एक आता है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। आप ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है ये तो नहीं पता लगेगा, बट किस हद तक ऑर्गेनाइज्ड है अपने लाइफ में, वो चीज बताएगा आपकी हैंडराइटिंग, ठीक है। अब वो किससे पता लगेगी? वो पता लगेगी हमें लेटर एफ से। लेटर एफ जो है अकेला ऐसा लेटर है जो अपर जोन में भी है, जो लोअर जोन में भी है, और वो मिडिल जोन में भी है, मतलब तीनों जोन कवर करता है। इकलौता ऐसा लेटर है कि लेटर एफ जो है वो
क्या चीज बताता है? लेटर जोन बेसिकली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बताता है और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी बताता है। जो बीच की लाइन हम डालते हैं, बहुत सारे लोग बीच की लाइन डालते ही नहीं, तो नहीं डाल रहे और लाइन किधर डाल रहे उस पर दोनों में फर्क पड़ेगा। अगर बीच की लाइन जो लेटर एफ है का जो स्टेम है उसके बीचों बीच डली हुई है, दैट मीन्स द पर्सन हैज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। जहां पर भी ये लाइन डली हुई है, दिस इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। अगर वो ऊपर या नीचे है, बीच में नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ भी चीज हमें लाइफ में चाहिए, उसको अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज की इंपॉर्टेंस है। आप लोग चेक करिए आपकी एफ में जो बीच का क्रॉस बार है वो कहाँ लग रहा है। आप लगा भी रहे, कुछ लोग ऐसे जो लगा ही नहीं रहे, कोई ऐसा है जिसने लगाया ही नहीं? इज देयर एनीवन हु इज नॉट पुटिंग एनी क्रॉस बार इन लेटर एफ? आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी का ना होना दर्शाता है। ये सब मिक्सअप ये अब आप देखेंगे, अगर आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी का मतलब क्या है, इसका बेसिकली अगर आप हिंदी में बड़ा लेमैन एग्जांपल में दूं ना, तो उसका हिंदी रूपांतर जो होगा हमारी डे टू डे की भाषा में, उसका मतलब है जुगाड़ू। आप कितना जुगाड़ू हैं, कितनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कितनी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, काम निकाल लेते हैं, तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी में आती है। तो अगर आप एफ का क्रॉस बार नहीं लगा रहे तो आप चीजों को इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं आपकी ये कमी है, लगाना बहुत जरूरी है, ठीक बीचों बीच जरूरी है। तो आपको एफ में बीचों बीच क्रॉस बार लगाना है, दैट विल प्रोबब्ली टेल यू अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। फिर एक चीज आती है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है कि आप इनिशिएटिव कितना लेंगे। मतलब इनिशिएटिव इज टू सक्सेस व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ कैंडल। मतलब इसी से जलेगी, ये कैटलिस्ट है आपका सक्सेस के लिए। इनिशिएटिव अगर आपको नहीं लेंगे किसी चीज के लिए तो आपको सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, क्या है। अब इसके अंदर ये किस तरीके से करेगा, जिसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको इसको उस पर समझाता हूँ जरा। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब जैसे हमने ये एक लेटर बनाया, के बना रहा हूं मैं, और के जो है वो ऐसा गया इधर से, या पी बनाया, पी जो है वो ऐसे चला गया, दिस इज पी। सो ये जो गैप है, ये बीच का जो गैप है, एक पी ऐसे बन सकता है, मैंने पी बनाया वो पी ऐसे हो गया। एक पी ऐसे बन सकता है, ये पी बनाया, ये ऐसे करके ऐसे बना। तो ये जो एंगल है इधर, ये वाला एंगल, दिस gap will show you your ability to take initiatives. तो अपर स्ट्रोक ऑफ लोअर केस p k h जो बाहर जाते हैं बेस लाइन से, दिस शोज योर एबिलिटी टू इनिशिएटिव, कि आप इनिशिएटिव लेते हैं बहुत, आप आगे बढ़ के काम करते हैं और आप बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, नई नई चीजों में आप ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये दीज आर इनिशिएटिव लेने वाली बात। टी का क्रॉस बार भी ऐसे जा रहा है, पीवी ऐसे बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर आपके हैंडराइटिंग में सैंपल्स हैं, दिस विल शो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर इनिशिएटिव लेने की, आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट इनिशिएटिव लेने का है कि नहीं। तो जस्ट बी केयरफुल, अगर कल को आप बनाते हैं, अगर ऐसा बनाते हैं, नहीं ले रहे, ऐसी नॉट नेसेसरी आपको हमेशा इनिशिएटिव लेना है, बट कुछ चीजों में जरूरी होगा कि हमें क्या करना लाइफ में, उसको देखने के लिए। तो आप ऐसा अगर आप बनाएंगे, yes, that shows that you are taking initiative. अब ये बहुत बड़ा वो है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ, आपको जो आप कर रहे हैं उस पर बिलीफ है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो आपने गोल सेट किया, वो अगर उस पर अगर आपको बिलीफ ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा कि आप वो चीज कर सकते हैं, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो बिलीविंग इन योर सेल्फ जो है, ये कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन एबिलिटीज एंड हाई सेल्फ एस्टीम, ये बहुत जरूरी चीज है कि हाई सेल्फ एस्टीम हो, आप अपने एबिलिटीज को बिलीव कर पाए वो चीज। ये किस चीज पे पता लगेगा हमें? ये पता लगेगा हमें लेटर आई पे। लेटर आई जो है, ये सेल्फ की बात करें तो लेटर आई इज अबाउट योर सेल्फ। लेटर आई रिप्रेजेंट्स यू, आप क्या हैं वो लेटर आई बताता है।
जब तक लेटर आई, अगर बाकी कैपिटल लेटर्स जो लिखे हैं आपने और कहीं पर लिखा कि आई एम दिस, तो उससे कंपेयर करेंगे अगर आप, मान लीजिए कहीं पे कोई टी कैपिटल लिखा है, कहीं पे आई कैपिटल लिखा है, और आई का जो साइज है वो टी से ऊपर है या किसी भी कैपिटल लेटर से ऊपर है, बड़ा बनाया आपने आई, तो दैट शोज अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, दैट शोज यस यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो जब भी आप आई बनाए अपना कहीं पर भी कि आई एम सो एंड सो, तो आई को थोड़ा सा बड़ा बनाए, तो ज्यादा थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए मीडियम से लार्ज साइज का बना रहा है, मतलब मीडियम साइज के बाकी हैं तो ये लार्ज साइज का बनेगा आई। तो आई को बड़ा बनाना, जितना बड़ा आई बनेगा दैट शोज, बहुत ज्यादा भी बड़ा मत कर दीजिएगा बिकॉज देन इट शोज ईगो। आई बड़ा, देन देयर इज अ वेरी थिन, चलो फाइनली फाउंड सम गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ गलत हो, हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज को सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका अगर आई बना है, अगर आप लोगों ने आई बनाया है, किसी और का आई बड़ा है मतलब या बराबर है, एनीवन हु वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट देयर आईज? किसी ने लिखा भी ऐसा कि आई एम दिस एंड दिस, नाम लिखा किसी ने अपना, या हैंडराइटिंग में आई लिखने की कोशिश करी है? हाँ जी, तो ये क्या हुआ, इसमें बड़ा है, वेरी गुड। हाँ जी, बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आई बड़ा होगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि दैट शोज योर सेल्फ एस्टीम, दैट शोज दैट यस यू बिलीव इन योर सेल्फ। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ एस्टीम कम होगी, उनके आई कभी बड़े नहीं दिखेंगे आपको, गारंटीड। वो है छोटा आई है अगर, तो आप देखेंगे वो ये तो बिल्कुल इसका सेल्फ एस्टीम आजकल लो है। और ये चीज आप बच्चों में भी चेक कर सकते हैं, बच्चों के आई कैसे बन रहे हैं। अगर वो आई छोटे बना रहे बाकी, और बोलो उनसे बोलो कि अपना वो आई एम करके जो कैपिटल अपना नाम लिखे वो भी कैपिटल में लिखे और आई भी कैपिटल में लिखे, उतना ही लिखवा लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसका नाम जो लिखा है उसमें वो नाम का कैपिटल जो है वो कितना बड़ा है और आई से आई कितना बड़ा है। आई अगर बड़ा है तो ये सेल्फ एस्टीम है बच्चे में, वेरी गुड। और आई अगर छोटा है तो सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कम है। तो कहीं छोटा हो कहीं बड़ा है तो हाँ तो कोई बात, वो आपको बड़ा देखना, आई का कंपेयर करना ना बाकी लोगों, बाकी कैपिटल लेटर से, जो भी कैपिटल लेटर दूसरा लिखा है उससे कंपेयर करना आपने कि, और फिर वही वाले फिर रूल वही आएगा कि कैसा कितना बड़ा वाला आएगा क्या नहीं आएगा। सो आप ये आई वाला जो है ये पर्सनल प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हम जब ग्राफोलॉजी पढ़ते हैं तो हम 40 से 50 तरीके की आई के बारे में पढ़ते हैं, और अलग अलग आई का अलग अलग मतलब है, ठीक है। जैसे इसमें अपर बार जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, लोअर बार जो है, लोअर क्रॉस बार जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, और इनके अलग अलग मतलब है, कैसे कहाँ पे लगाया क्रॉस बार, क्या किया है, बड़े बड़े अलग अलग मतलब है। जैसे डिटेल मतलब ऑलमोस्ट एक पूरी क्लास है इसमें आई के ऊपर ही। आई और टी ये दो लेटर्स ऐसे हैं ग्राफोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन पे बहुत ज्यादा आपको काम कर, मतलब इसमें काफी इंटरेस्टिंग भी है। और आप जब हैंडराइटिंग सैंपल आप चेक करते हैं तो आपका बिल्कुल नजरिया पूरा लोगों को देखने का, लोगों से बात करने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। दूसरी एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, सेल्फ एस्टीम के लिए सिग्नेचर का साइज आपकी हैंडराइटिंग के साइज से मिलता हुआ, कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि सिग्नेचर भी आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड पर्सनालिटी है आपकी, एक्सटेंडेड आपका आप कह सकते हैं कि मेरा एक ऑल्टर ईगो है आपका, वो सिग्नेचर जो है, या आपका एक एक्सटेंशन आप अपना मान सकते हैं सिग्नेचर को। सो वो सिग्नेचर आपकी हैंडराइटिंग से बड़ा है अगर, तो ये सेल्फ एस्टीम आपके अंदर है, और सिग्नेचर छोटा है हैंडराइटिंग से तो सेल्फ एस्टीम नहीं है। सो ऑलवेज हैव अ बिगर सिग्नेचर देन योर हैंडराइटिंग, ऑलवेज एज अ रूल हैंडराइटिंग से सिग्नेचर थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, और ज्यादा बड़ा अगर आप नहीं कर रहे सिग्नेचर को, एटलीस्ट पहला लेटर सिग्नेचर का बड़ा कर लीजिए, वो तो जरूरी है, 100% जरूरी है, उसको छोटा मत रखिएगा कभी भी। और बाकी फिर ये जब हम ग्राफोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सिग्नेचर एनालिसिस अलग पढ़ते हैं, हम सारे हैंडराइटिंग में, तो ग्राफोलॉजी में 3-4 तरीके की चीजें हैं। एक पहले तो जेस्टॉल्ट मेथड है, गस्टॉल्ट मेथड, जिसमें हम पेपर को पढ़ते हैं, पेज पे कैसे, वो उसमें हम हिंदी भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और कोई भी स्क्रिप्ट है उसको हम पढ़ सकते हैं ग्राफोलॉजी के अंदर, उस वाले जो गस्टॉल्ट मेथड से।
तो वन इज गस्टॉट मेथड। सेकंड उसके करीब 100 से ऊपर पैरामीटर्स हैं हैंड राइटिंग चेक करने के। फिर उसके बाद हम अल्फाबेट्स पे आते हैं, हर तरीके के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। फिर हम डूडलिंग भी पढ़ेंगे, जो बच्चे आप भी कुछ बैठे बैठे कागज पे कुछ ड्राइंग बना देते हैं, तो उस ड्राइंग का भी एक मतलब है, वो ड्राइंग ऐसी नहीं बन गई, उसका कुछ, उससे आप बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में। फिर उसके बाद जो नंबर्स आप लिखते हैं, जैसे भी आपने नंबर लिखा, किस तरीके से नंबर्स लिख रहे हैं, वो भी हम उसमें पढ़ते हैं ग्राफोलॉजी के कोर्स में। सो दिस इज ऑल, मतलब काफी एक्सटेंसिव कोर्स है ग्राफोलॉजी का। 12 क्लासेस हैं लगभग उसमें, और ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास रहती है। बट अगेन दैट इज, इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस फ्रॉम योर एंड। तो प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके साथ बहुत हैंड राइटिंग सैंपल स्टडी करेंगे, लाइव एग्जाम्पल। जितने आप हैंड राइटिंग सैंपल स्टडी कर सकते हैं उतना अच्छा आप उसको पढ़ सकते हैं। सो वो कोर्स है, दैट कोर्स का जो फीस है दैट इज ओनली 15,000 रुपीज, और उसमें आपको मैं कुछ बुक्स भी दूंगा PDF ग्राफोलॉजी की, जो आप पढ़ सकते हैं आगे। बाकी ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको टी अपना ठीक करना है, जिनको टी का क्रॉस बार ठीक करना है अपना, तो ये आप लिख सकते हैं, आई हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें एटीट्यूड जैसे कैपिटल लिखा है, ऐसे आप ग्रेटिट्यूड का जी भी कैपिटल कर सकते हैं, और आई को बड़ा बना सकते हैं, आई को बड़ा बना सकते हैं जो बाकी से होगा। और एटीट्यूड का जो टी है, जो लाइंस हैं, इसको आप ऊपर बना सकते हैं। तो एटीट्यूड इज अ वर्ड जिसमें 3 बार टी आएगा, ग्रेटिट्यूड इज अ वर्ड जिसमें 2 बार आएगा, तो ये सब बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस लाइन and it's a good line to have. It's a affirmation. जो आप affirmations, बहुत सारे लोग affirmations भी लिखते होंगे, so जो आप affirmations लिख रहे हैं उस पे लिखते समय ध्यान दीजिए। कुछ लोग स्विच वर्ड्स लिख रहे होंगे, कुछ लोग सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, उन सब टाइम पे आप अगर ये कुछ वर्ड्स को अलग तरीके से फॉर्म करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट आएगा। यू विल फील डिफरेंट इन 1 महीना। अब 40 दिन 50 दिन का आप टाइम ले लीजिए, उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस 100% नजर आएगा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। उन चीजों पे जहां पे अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें आपकी करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। आपको लगेगा ये अपने आप हो रही है, लेकिन नहीं, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, एक पेज 2 पेज रोज आप लिखिए राइटिंग, हैंड राइटिंग। ये लाइन, इस हर एक लाइन पे जिसका लोअर जोन का प्रॉब्लम है, ये ग्रीन ग्रास जी, जितने मर्जी आप बड़े बड़े लूप बना सकते हैं, आप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ की प्रॉब्लम है तो ये वाला ये कर दीजिए, या कोई अफर्मेशन आप जो भी लिख रहे हैं अफर्मेशन, उनमें अगर सारे लेटर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अफर्मेशन भी हो जाएगी आपकी, और आप जो लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। इट विल हैव अ, मतलब डबल इम्पैक्ट हो गया आपका। अफर्मेशन का काम हुआ, और राइटिंग से आपका वो अफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है अपना हैंड राइटिंग से, वो हम अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 10 चीजें जो हमने देखी आपकी हैंड राइटिंग में। आई होप आप लोगों को, मतलब आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और ये 10 चीजें अगर आप ठीक कर लेंगे अपनी लाइफ में, सो यू विल बी मच क्लोजर टू वेयर यू वांट टू गो इन टर्म्स ऑफ। सर कर्सिव इज ओके? हाँ, कर्सिव इज ओके। हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग में 4-5 तरीके के कनेक्शंस होते हैं। कर्सिव इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। एक कनेक्शन उसमें आर्केड टाइप का कनेक्शन है आपका, उसमें गार्लैंड टाइप का कनेक्शन है, डिस्कनेक्टेड, हर एक के मतलब अलग अलग है। बट इसको देयर इज नथिंग एज सच व्हिच इज रॉन्ग। अब ये मत समझिए थी कि हम सभी ने कर्सिव हैंडराइटिंग सीखी थी। आज भी बच्चे जो स्टार्ट करते हैं हैंडराइटिंग सीखना, वो कर्सिव हैंडराइटिंग से करते हैं, लेकिन बड़े होते होते उनकी हैंडराइटिंग जो है, सभी की हैंडराइटिंग बदल जाती है। किसी भी दुनिया में जैसे फिंगरप्रिंट सारे सभी के अलग अलग हैं, उसी तरीके से किसी भी 2 लोगों की हैंडराइटिंग सेम नहीं है, सबकी हैंडराइटिंग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका माइंड अलग है। इट इज अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी, इट इज नॉट अ कॉन्शियस माइंड एक्टिविटी। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑल्टर करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हमारे सबकॉन्शियसली हमारी प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने के लिए हम कॉन्शियस एफर्ट डाल के अपनी हैंडराइटिंग को ठीक कर रहे हैं, सो दैट वो बाद में सबकॉन्शियसली एडजस्ट हो जाए। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग शुरू सीखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। जब एक बार आ जाती है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके करते हैं। सेम इज टाइपिंग, सेम इज ड्राइविंग, सेम इज ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू डू रेगुलरली। डेली जो आप करते हैं, प्रैक्टिस में होती है चीजें आपकी, तो उसमें वो प्रैक्टिस में ही रहेंगी। सो ये आप जो भी हम
करेंगे इसके अंदर, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यू कैन प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, यू कैन प्रैक्टिस सच सेंटेंस आल्सो एंड वर्ड्स आल्सो, जो भी आपको लिखना आप लिखिए। हेलो सर। हाँ जी। Sir, how about the calligraphy of flourishing we do, right? Will it affect? How is it? Is it? Will it affect? कैलीग्राफी नहीं आएगा हैंडराइटिंग के अंदर। Okay. वो तो कॉन्शियसली कर रहे हैं ना आप। Okay. That वो तो आप कॉन्शियस, वो नहीं, आप हैंडराइटिंग मतलब आपने तो कोई सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना, आप लिखो कोई, वो हैंडराइटिंग अपने उसमें कैलीग्राफी नहीं चलेगी। या तो आप हैंड कैलीग्राफी कर सकते हो या आप हैंडराइटिंग लिख सकते हो। कैलीग्राफी अगर किसी का सर्टिफिकेट पर नाम लिख रहे हैं आप, दैट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, वो थोड़ी, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हैंडराइटिंग नहीं है, दैट डजंट कम अंडर हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू। हैंडराइटिंग इज हैंडराइटिंग, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। आपको कुछ टेक आउट मिला, कुछ एक चीज आप ठीक करेंगे अपनी हैंडराइटिंग में और अपनी लाइफ में कुछ तो चेंजेस लेकर आएंगे इसके बाद, एंड यू विल बी क्लोजर टू सक्सेस। आई विश सक्सेस टू एवरीवन, जो भी सक्सेस आपको है मिले आप लोगों को, और थोड़ा बहुत एक स्टेप क्लोजर आप पहुंचे अपने सक्सेस के। थैंक यू सो मच। आप लोग ग्रुप पे कुछ फीडबैक डालना चाहें तो जरूर डालें, और जो भी ग्राफोलॉजी की कोर्स पे इंटरेस्टेड हो, डू गेट इन टच विद अस, एंड हम लोग उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Come back.